السلام علیکم، نیوز سے میں ہوں سلمان کیانی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے۔ سب سے پہلے بات کریں گے ٹرمپ کی جانب سے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کا اعلان۔ پاکستانی وقت کے مطابق شام 7 بجے ناکہ بندی کا آغاز ہو گیا۔ ایران اپنا تیل نہیں بیچ سکے گا۔ ایران آبنائے ہرمز کھولنے کے وعدے سے مکر گیا اور جھوٹ بولا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے۔ ایرانی بحریہ سمندر کی تہ میں جا چکی۔ ایران کے 158 بحری جہاز تباہ کیے، صرف چھوٹی کشتیاں چھوڑی ہیں جنہیں یہ تیز رفتار حملے کرنے والی کشتیاں قرار دیتے ہیں۔ چھوٹی کشتیوں کو ہم خطرہ نہیں سمجھتے۔ ایران سے جنگ بندی برقرار ہے۔ اگر یہ جہاز امریکی ناکہ بندی کے قریب آئے تو انہیں فوری طور پر ختم کر دیا جائے گا۔ سمندر کے راستے امریکہ آنے والی منشیات کی بڑی مقدار کو روک لیا گیا ہے اور اس حوالے سے کارروائیاں تیز اور سخت رہی ہیں۔ اسلام آباد مذاکرات میں کئی نکات پر متفق ہو گئے، مگر ایران سے جوہری معاملے پر اتفاق نہیں ہوا۔ اس بات کی پرواہ نہیں کہ ایران مذاکرات میں واپس آتا ہے یا نہیں۔ ایران اس وقت بہت بری صورتحال میں ہے۔ امریکی ناکہ بندی غیر قانونی بحری قزاقی کے مترادف ہے۔ ایرانی فوج کا رد عمل۔ ترجمان نے کہا آبنائے ہرمز غیر فوجی جہازوں کے لیے کھلی ہے۔ دشمن نے کسی بھی قسم کی جارحیت کی تو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر نے امریکی صدر کے بیان کو مسترد کر دیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے اگر امریکی حکومت خود کو آقا سمجھنا چھوڑ دے تو معاہدے کی راہیں کھل سکتی ہیں۔ ہرمز کی ناکہ بندی کے اعلان کے بعد امریکہ ایران میں کشیدگی بڑھنے لگی۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے مذاکرات پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اگر امریکی حکومت خود کو آقا سمجھنا چھوڑ دے تو معاہدے کی راہیں کھل سکتی ہیں۔ ایرانی قوم کے حقوق کا احترام کیا جائے تو مذاکرات نتیجہ خیز ہو سکتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کے مطابق ایران جنگ کے خاتمے کے لیے سنجیدہ تھا۔ فریقین اسلام آباد مفاہماتی یادداشت کے قریب پہنچ چکے تھے کہ آخری مراحل میں امریکہ کی جانب سے زیادہ مطالبات، موقف میں تبدیلی اور ناکہ بندی جیسے اقدامات نے معاہدہ ہونے سے روک دیا۔ دوسری جانب ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر نے امریکی صدر کی ناکہ بندی سے متعلق بیان کو طنزی انداز سے مسترد کر دیا کہ موجودہ تیل قیمتوں سے لطف اٹھائیں کیونکہ اگر کشیدگی بڑھی تو قیمتیں مزید بڑھ سکتی ہیں۔ محمد باقر کارباس نے خبردار کیا کہ امریکی دھمکیوں کا ایران پر کوئی اثر نہیں ہوگا اور اگر جنگ مسلط کی گئی تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ادھر ایران کے خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر کے ترجمان نے بھی سخت موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ دشمن سے منسلک جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دیگر تجارتی جہاز ایران کی مسلح افواج کے قواعد کے تحت گزر سکیں گے۔ ایرانی حکام نے خبردار کیا کہ اگر ایران کی بندرگاہوں کی سیکیورٹی کو خطرہ ہوا تو خلیج فارس اور بحیرہ عمان میں کوئی بھی بندرگاہ محفوظ نہیں رہے گی۔ آبنائے ہرمز کی ممکنہ ناکہ بندی نامنظور۔ روس، برطانیہ، آسٹریلیا، چین کا ایک موقف۔ چین کی آبنائے ہرمز کے معاملے پر تمام فریقین سے صبر و تحمل کی اپیل۔ روس نے خبردار کیا امریکی اقدام سے توانائی کا بحران مزید شدت اختیار کر سکتا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے واضح کیا آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی سے متعلق کسی آپریشن کا حصہ نہیں بنیں گے۔ آسٹریلی وزیر اعظم نے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی امریکہ کا یک طرفہ اقدام قرار دیا۔ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ امریکی خام تیل کی قیمت میں $5.64 اضافے سے قیمت $102.36 ہو گئی۔ برطانوی خام تیل $5.84 سے بڑھ کر $101 فی بیرل ہو گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا خطے میں پائیدار امن کے لیے کردار جاری رکھنے کا عزم۔ امریکہ اور ایران کے درمیان 47 سال بعد اعلیٰ ترین سطح پر آمنے سامنے بات چیت ہوئی۔ تصفیہ طلب نکات حل کرنے کے لیے پوری کوششیں جاری ہیں۔ پاکستان کو وہ عزت ملی جو تاریخ میں ہر کسی کو نہیں ملتی۔ اسلام آباد مذاکرات تاریخی لمحہ، وطن عزیز کے 24 کروڑ عوام کے لیے باعث فخر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب۔ کہا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ثالثی کے لیے دن رات محنت کی۔ اسحاق ڈار اور سید عاصم منیر کا کردار تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا انعقاد ایک تاریخی پیش رفت ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان تقریباً 47 سال بعد اعلیٰ ترین سطح پر براہ راست بات چیت ممکن ہوئی۔ وزیر اعظم نے کہا یہ امر باعث اطمینان ہے کہ دونوں فریقین نے 2 ہفتوں کی جنگ بندی پر اتفاق کیا جو خطے میں امن کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ 47 سال امریکہ اور برادر ملک ایران کے درمیان آج تک جتنی بھی ملاقاتیں ہوئیں اعلیٰ ترین سطح پر تو وہ ہمیشہ وہ انڈائریکٹ ٹاکس تھی، اور الحمدللہ یہ پہلا موقع ہے اعلیٰ ترین سطح پر دونوں وفود ہماری درخواست پر پاکستان تشریف لائے۔ پاکستان کو اس طرح اللہ تعالیٰ نے نہ صرف میزبانی کا، ثالثی کا اور
अमन को दोबारा कायम करने का एक ऐसा मौका दिया जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर-ए-आज़म ने नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और उनकी टीम को खराज तहसीन पेश किया, जबकि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और उनकी टीम की हिकमत अमली को सराहते हुए कहा कि उनकी फरासत से ये मुमकिन हुआ कि दोनों ममालिक कारजी जंगबंदी पर आमादा हुए, इस्तेकाम और सालसी के लिए अपना मुस्बत किरदार जारी रखेंगे। ईरान अमरीका मुज़ाकरात और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद की दावत पर बुध को सऊदी अरब रवाना होंगे। शहबाज शरीफ की मोहम्मद बिन सलमान और दीगर सऊदी हुक्काम से मुलाकातें शेड्यूल। ईरान अमरीका जंगबंदी में तोसी समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाक सऊदीया दिफाई और मुआशी ताउन पर भी बातचीत होगी। वज़ीर आज़म सऊदी अरब के बाद तुर्किया का दौरा करेंगे। सदर रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात होगी। दोबारा मुज़ाकरात के इम्कानात अब भी मौजूद हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर जल्द शुरू होगा। मुज़ाकरात के बाद इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है। इस्लामाबाद में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात के हवाले से कोई मनफी बात सामने नहीं आई, सिर्फ मुस्बत बातें ही सामने आ रही हैं। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या आइंदा खित्ते के फैसले पाकिस्तान करेगा। ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया, फैसले अल्लाह ताला की ज़ात करती है। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च की हुकूमत पंजाब की 2 साला कारकर्दगी पर मबनी सर्वे रिपोर्ट जारी। राय आमा के सर्वे में 69% अफराद का वज़ीर आला मरीम नवाज की क़यादत पर इत्मीनान का इजहार। पंजाब की तरक्की को दुरुस्त समत में पेशरफ्त करार दे दिया। नौजवानों की अक्सरियत मरीम नवाज की मद्दाह निकली। वज़ीर आला पंजाब का पाकिस्तान की पहली सरकारी मैयत मुंतकिली सर्विस का आगाज़। कहा, रेस्क्यू एहलकारों से अपील करती हूँ, अगर कोई मैयत मुंतकिली पर खुद भी पैसा दे तो हरगिज़ ना लें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की पहली सरकारी मैयत मुंतकिली सर्विस का आगाज कर दिया। लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान के लिए मैयत मुंतकिली सर्विस की गाड़ियों की चाबियां हुकाम के हवाले की और गाड़ियों का मुआयना भी किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि मैयत मुंतकिली सर्विस के पहले फेज में लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी के सरकारी अस्पतालों से तकरीम के साथ मैयत बिला मुआवजा घर में मुंतकिल की जाएगी। जून तक मैयत मुंतकिली सर्विस का दायरा कार पंजाब के हर तहसील में बतदरीज शुरू किया जाएगा। दूसरी जानिब इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च की हुकूमत पंजाब की 2 साला कारकर्दगी से मुतालिक सर्वे रिपोर्ट जारी की गई। 7000 शहरियों की आरा शामिल। 65% ने सूबे को तरक्की की दुरुस्त सिमत पर गामजन करार दिया। सियासी मकबूलियत के हवाले से सर्वे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 42% अवामी हमायत हासिल रही। मुख्तलिफ शोबों में कारकर्दगी के जायजे में सुथरा पंजाब प्रोग्राम 33% के साथ सरे फहरिस्त रहा। सर्वे में शामिल 56% अफराद ने सैनिटेशन और बल्दियाती खिदमात पर इत्मीनान का इजहार किया। 18 से 40 साल के 69% अफराद ने हुकूमत की कारकर्दगी पर मुस्बत ख्यालात का इजहार किया। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा एवेट कॉपर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने इस्लामाबाद में पाक अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया। इसहाक डार ने बरतानवी हम मनसब से गुफ्तगू में कहा, तमाम फ़रीक़ैन जंगबंदी का मुकम्मल एहतराम और मौसर अमल दरामद यकीनी बनाएं। इलाकाई चैलेंजेस का हल सिर्फ मुकालमे और सिफारतकारी में है। देर पा अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान अपने आज़म पर कायम है। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा के ख़ित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़। कहा, पाकिस्तान का तामीरी किरदार ख़ित्ते में इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। कराची में कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। मुहिम के दौरान 1 करोड़ 6 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान सुहेल। सिंध में 7 रोजा पोलियो मुहिम का आगाज। वजीर आला सिंध ने डिफेंस में वाक़े गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। 1 करोड़ 6 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे, जबकि 9 लाख बच्चों को विटामिन ए भी दिया जाएगा। मुहिम में 83,000 से जायद तरबियत याफ्ता फ्रंट लाइन वर्कर, जबकि सिक्योरिटी के लिए खवातीन समेत 24,000 से जायद एहलकार तैनात किए गए हैं। मुझे ये बताने में खुशी हो रही है कि हमारे सूबे में पिछले साल तकरीबन 80% जो एनवायरमेंटल सैंपल्स थे उनमें पोलियो पाया जाता है, वो पॉजिटिव थे। और अब जो लेटेस्ट हमारी सर्वे हुई है उसमें वो
80% से कम हो गए, 24% हो गए। इफ्तिताही तकरीब में वजीर तालीम सैयद सरदार शाह, मेयर कराची बैरिस्टर मुस्तफा, कमिश्नर कराची हसन नकवी, सेक्रेटरी सेहत ताहिर सांगी और पोलियो प्रोग्राम के सरबराह शहरियार गुल समेत आला हुक्काम शरीक हुए। उन्होंने मीडिया, उलमा इकराम और सिविल सोसाइटी से भी अपील की कि वो पोलियो के खात्मे के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें। कैमरामैन मोहम्मद शुएब के साथ कामरान सुहेल, नियो न्यूज कराची। FIA अगर दुरुस्त काम करती तो नैब ना बनती। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। अगर कोई करप्शन में मुलव्वस पाया गया तो मुआफ़ी नहीं होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, जराइम की रोकथाम में FIA का अहम किरदार है। FIA के शोहदा के वरसा को जल्द प्लॉट्स देंगे। FIA मुलाजमीन को सहूलियात की फराहमी पर काम कर रहे हैं। सिक्योरिटी इदारों की मौसर कार्रवाई। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए जासूसी में मुलव्वस 3 अफराद गिरफ्तार। मुलजिमान का ताल्लुक नारोवाल, भावलपुर और ज़िला नीलम आज़ाद कश्मीर से है। गिरफ्तार अफराद ने एतराफ़ किया कि उनसे मखसूस सोशल मीडिया ऐप्स पर ख़वातीन और रकम का झांसा देकर हसास मालूमात तक रसाई हासिल की गई। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। मुल्क की सिक्योरिटी इदारे अंदरूनी और बैरूनी खतरात से नबरदाजमा होने के लिए दिन रात मसरूफ़ अमल। भारतीय खुफिया एजेंसी रा के लिए जासूसी में मुलविस 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान का ताल्लुक नारोवाल, बहावरपुर और जिला नीलम आजाद कश्मीर से है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान ने तफ्तीश के दौरान एतराफ़ किया कि वो भारतीय खुफिया एजेंसी रा से मुंसलिक खवातीन से सोशल मीडिया एप्स के जरिए मुसलसल राब्ते में थे। इनसे खवातीन और रकम का झांसा देकर हसास मालूमात तक रसाई हासिल की गई। सराय के मुताबिक मुलजिमान को रकूम इजी पैसा, क्रिप्टो वॉलेट्स और बैंक अकाउंट्स के जरिए मुंतकिल की गई। मुलजिमान के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई के बाद सजाएं सुना दी गयी। दिफाई माहिरीन के मुताबिक भारत मासूम शहरियों को रकम का झांसा और हनी ट्रैप जैसी सरगर्मियों के जरिए मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इससे कबल भी भारत के हाजिर सर्विस अफसरान की जानिब से पाकिस्तान में जासूसी और हसास मालूमात तक रसाई के शवाहिद मंजर आम पर आ चुके हैं। अवाम को सोशल मीडिया के इस्तेमाल में दुश्मन की इंटेलिजेंस एजेंसीज के हरबों से मोहतात रहने की अशद जरूरत है। प्रोडक्शन टीम, नियो न्यूज, इस्लामाबाद। PSL में मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी मध्य मुकाबल। मुल्तान सुल्तान्स की 197 रन हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी। पेशावर की टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेट्स पर 196 रन बनाए। कुशल मेंडिस 68, मोहम्मद हारिस 38 रन बनाकर नुमाया रहे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची आमद। मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी का मैच देखा। मोहसिन नकवी ने स्टेडियम में सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। सिंध पुलिस और सिंध रेंजर्स के फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खित्ते में कशीदगी के पेश नज़र मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर के हवाले से जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क में तेल के मौजूदा ज़खायर और मुस्तकबिल की ज़रूरियात के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म की मुल्क में तेल की खपत की मुस्तकिल निगरानी जारी रखने की हिदायत। कहा, तेल की खपत और ज़खायर की मुस्तकिल निगरानी और बेहतर हिकमत अमली की वजह से खित्ते में कशीदगी के बावजूद तेल की कमी का बहरान पैदा नहीं हुआ। आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए जो इक़दाम लिए हैं वो जारी रहेंगे। इजलास में नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा मोहम्मद इसहाक़ डार, वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी अमूर अहद चीमा, वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक, वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ और मुताल्लिका इदारों के आला अफसरान शरीक थे। कुछ मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।